upon a time there was a young princess. Her name was Snow White. She had white skin, red cheeks, and black hair. Snow White's mother died long ago, so Snow White lived with her father. They were very happy together. One day, the king fell in love. The Snow White had a new mother and the kingdom had a new queen. Snow White tried to play with her new mother. Go away! Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? You are the fairest in the kingdom. Year passed and Snow White grew up. She often walked to the town. She sang songs with children. She gave food to poor people. Everyone loved the young princess. But the queen did not like the Snow White. She never spent time with the girl. Instead, she talked to her mirror. Mirror, I am the most beautiful woman in the kingdom, right? You are indeed very fair, but now there is something more beautiful. Who is more beautiful than I am? Everybody says Snow White is so nice, so perfect. Well, let me stop saying it soon. That night, Queen met Hunter in the village. He carried an axe. She whispered something in his ears. She slipped some gold coins. She slipped some gold coins into his hand. The next day, Snow White walked through the village. A stranger grabbed her. Let me go, please, let me go. He threw Snow White on a horse. Please, sir, let me go. I have not done anything wrong. You poor child, go, but do not ever return home. The queen wants you back. Why? It doesn't matter. Just go. The poor Snow White, she will never survive in this forest. Snow White ran deep into the forest. Branches pulled her hair, thorns snatched her arms and hands. Snow White climbed over rocks and trees' roots. At last she stopped to rest. How big is this forest? I walked for hours. Now I am lost and it's getting late. I must find shelter. Around. But where? She held her breath. She stared into the darkness. Was the hunter coming back for her? Do he came to kill me? I see a house. Hello, is there anyone home? 7 plates, 7 spoons, 7 bowls. Why everything is 7 here? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ Now I am so tired. Oh, it's too lovely. Oh, it's too far. 7 dwarfs slammed to the house. Picks and bags fell to the floor. They sat down on the table. Where's my dinner? Somebody robbed us. The 7 dwarfs looked under the furniture, finding everywhere. I do not see anyone and nothing else is missing. Dwarfs
the bedroom. Ow! Who stepped on my foot? Somebody sleeping on my bed. They stared at Snow White. She's beautiful. Should we wake her? Yes, please. But I do not have a bed. We have 6 other beds. You can sleep on each one for 1 hour. Hey! Snow White woke up. 7 faces stared at her. We want to hurt you. What's your name? I am Snow White. My name is Tati. Where are you from? You had a family. Snow White told the dwarfs her story. I never liked the new queen. A fool. That's the saddest story ever. Snow White, please stay with us forever. That sounds wonderful. We have to be careful. The queen must not learn that you are alive. Dwarfs get ready for work. We will be back after dark. Don't let anyone in. Okay, I promise. Dwarfs gone. Now, I'm the most beautiful woman in the kingdom, right, Mira? Here is a woman 1,000 times more beautiful. Who is she? Snow White is the most beautiful woman in the kingdom. Oh no, Snow White is still alive? Snow White is still alive and still beautiful. I have to do something. Lovely, beautiful clothes. Hello, miss, do you want to buy some clothes? No, thank you. This coat matches your hair. Just try it on. There is no harm in it. Okay. I could not breathe. Goodbye, Snow White. What is so wonderful? Why was the queen so nasty to her? I don't understand. I never liked that fool. She's a fool. There is no fight. I don't want food. Snow White is breathing. Photo of her. I am very happy to see you all. What happened? It must have been the queen. Remember Snow White? Don't let anyone in. Okay, I'm gone. Who is it? Just that old woman. She is not woman from yesterday. Please buy a girl from me. I need money for food. You are hungry. Come in. Can I comb your hair? Yes. Delicious juicy apples. Delicious juicy
fancy apples. Hello dear, you want to buy some? No, thank you. Are you sure? What a beautiful apple. I must not trust this woman. Try it, dear. Just one bite. We need a coffin for her. How old? Snow White is breathing. Thank you, sir. Be careful, that apple is spoiled. It was stuck in my throat. Okay. You saved my life, sir. That evil woman cannot hurt you now. Please marry me. Who is getting married? Who's the bride? Is she Snow White? Oh no, Snow White! Queen went far away from the palace. Prince and Snow White lived happy ever after. Thank you! Thank you, Himanshi. Good afternoon to all of you. I am Ranvijay from class 6. I am Ayush from class 6. The internet is a global network of billions of computer and other electronic devices. But internet also has side effects which could harm any internet user. So make some noise for my friends. Those are going to perform on this topic. आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से?
तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा बाप भी नहीं जानता। फेक आर्ट का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मेरी दुनिया लुटी, तू जुदा हो गया। मेरा दिल तेरे गम में बना हो गया। वो दिए गए जख्म तूने क्यों सनम, मेरी जान मुझे बतला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं हूँ यूट्यूब। यहाँ सब लोग अपना अपना चैनल खोल के रखा है और मुझसे ही द्वारा तो सभी चैनल वालों अमीर हो रहे हैं। इंस्टाग्राम मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की,
तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो, कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता के काले काले चेहरे डर 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 डसे और मंजिल हंसे आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर 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 डसे और मंजिल हंसे डर 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 डसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए, ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान। Wow, what a wonderful performance. Himachali people are the sweetest people. They are considered to be very hardworking, and the Himachal Pradesh is also called Devbhoomi. The students of our school are now coming to perform on Himachali folk song.
Himachalis have rocked the stage. Jai Hind, Jai Himachal. Popular folk dance of the Punjab region. Just an energetic as Bhangra, at the same time, it managed to creatively display feminine grace, elegance and flexibility. आओ सदिए साडे स्कूल दियां लम्मियां उच्चियां ते सोहणियां मुटियारां नूं जो पाउण गिया गिद्धा गिद्धा ते गिद्धा। आओ कितने पालैया आओ किदा पाले आओ किदा 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 जाती कोड़िए झुर दी पिछाड़
काट रहे थे पेड़ लकड़हारे, फिर थक कर वहीं जमीन पर बैठ गए। पेड़ों का बड़प्पन तो देखिए, जरा अपनी टहनियां बढ़ाकर उन लकड़हारों को छांव दे गए। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या ना लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या ना लूं जरा, मर जाओ
मुझको सता जाए एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाओ या जियो जरा, खुशियाँ झूम लो या रो जरा, मर जाओ या जियो जरा। What a wonderful teaching performance. Technology will not replace great teachers, but the technologies are in hands of great teachers and can be transformational. So we are inviting the students of class 5th to tell us the best use of technology. नमस्ते बच्चों। सबने घर का पाठ किया है? गौरव, तुमने घर का पाठ किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? कल मेरे मामा के, चाचा के, भतीजे के, काका के, चाचा के, मामा के बेटी के बेटे का जन्म दिवस था। अच्छा, चलो जाग के मुर्गा बनो। तो हम कल कहाँ थे वही से शुरू करेंगे। क से, ख से, ग से। सर, आपको प्रधान अध्यापक बुला रहे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ।
Wow, what a great performance. Namaste to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to stand here at this important moment to celebrate our annual day today. It is also an honor for mission is far more than what happens within the four walls of the classroom. Undoubtedly, I have such good teachers, trainers and instructors who recognize this talent in students and help them in their grooming. And believe you me, one of the joys of the teaching is to draw that creative, academic and supporting potential out of the students. We all are gathered here to motivate and inspire young minds to showcase their talent. This is a highly important occasion for everyone. It is because of that, apart from the fact that this celebration highlights our school's continuous success in the area of education. And this platform is also an opportunity to welcome our chief guest of today's evening. Our heroes are those who risk their lives every day to protect world and make it a better and safe place for us to live. Namaste to one and all present here. I am extremely privileged कि हमारे बीच आज मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर जो कि एनडीआरएफ के चीफ कमांडेंट हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं सॉरी, बैठे हुए हैं। शौर्य, वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस और बलिदान के प्रतीक भारतीय सेनाओं के सभी वीरों को हमारा नमन। Deputy Commandant Shri Dharmendra Thakur is a young and idle personality who is serving and protecting our country. हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि जसूर जैसे छोटे से टाउन में हमें हर तरफ संतरी रंग की वर्दी पहने हुए ये सैनिक नजर आते हैं, जिन्होंने इस बार आई हुई मानसून की तबाही से ना जाने कितने लोगों की जान बचाई। जब कोई भी आपदा आती है और हम सब अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, ये अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करते हैं। मैं आज सेंट जेवियर स्कूल परिवार तथा अपने सभी अभिभावकों की तरफ से इस बटालियन का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बीच बैठे सेना के सभी जवान 1 मिनट अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Kindly stand on your places. अब मैं आप सब पेरेंट्स से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच खड़े ये सेना के नौजवान, इनके लिए प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियों से इनका हौसला बढ़ाएं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी अभिभावकों से वो धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमेशा हम पर विश्वास रखा और एक परिवार की तरह हमारी अच्छी और बुरी बातों को स्वीकार किया है। मैं दिल से सभी अभिभावकों को धन्यवाद देती हूँ। सभी अभिभावक अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। Now I would like to call on our chief guest Shri Dharmendra Thakur ji to kindly come up on the stage and address us. To do the honors, I also call chairman of the school, Mr. Vikas Singh Cheb. हमारे बीच एक यूथ आइकन सभ्य लोटिया जी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं। इस स्कूल के फाउंडर मिस्टर सतिंदर सिंह चिब और उषा चिब को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपया वो स्टेज पे आएं और हमारे चीफ गेस्ट का ऑनर करें।
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ Of Andiara, kindly come up on the stage and do the honor. हाँ जी मैम थोड़ा प्लीज़ सर सर प्लीज़ हाँ जी सर जी बढ़िया जी वन वेट सर ओके जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कामिनी मैम से कि कृपया हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए ट्रॉफी स्टेज पर लेकर आए। कि हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित करें। हाँ जी यस वेट करना सर मैं सर चेयरमैन को दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभ्य लोटिया जी को भी गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित करें। हाँ जी Before we start with the prize distribution ceremony, I would like to request Sir Dharmendra Thakur ji to please come up on the dais and say a few words. Jai Hind, Namaskar and good afternoon to all. Respected ladies, parents, Shri Vikas Singh Chief, the chairman of St. Xavier Cambridge School, Shrimati Kavita Chief, the principal St. Xavier Cambridge School, all the teachers, staff and the students. It's truly an honor to be chief guest for witnessing this wonderful and fantabulous function. To be very frank, I don't want to bore you with my lecture, but yes, when I got this opportunity to be the chief guest, I would definitely wanted to share some of the aspects with you. Respected sir, the chairman and the whole St. Xavier family, on behalf of the Commandant 14th Battalion and the rescuers of 14th Battalion NDRF, please accept our gratitude for inviting us for this function. I take this opportunity to congratulate all the staff, students, parents and the teachers for their hard work, dedication for this, I would say, one of the world-class performances and the function. I have a 20 years experience in forces and I'm a ex-military school product, and I started my journey with the primary school, be it that is in Himachal Pradesh only, and this is one of the best performance, one of the best function, meticulously organized, which clearly depicts the hard work and the dedication and the planning and the zeal followed by all the students, staff and all the directly or indirectly involved members. For the students, मैं students क्योंकि students शायद मुझे समझे, आप इस विद्यालय के, इस स्कूल के हार्ट एंड सोल है, आपके एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी और जो ईगरनेस जो आपने लर्निंग के लिए दिखाई है, जो आप कर रहे हैं, वो कमेंडेबल है. इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ. The school staff जिनका की अनवेवरिंग हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इस स्कूल को इस मुकाम पर ला रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस. The most important
जो हमारे अभिभावक पेरेंट्स, उनका सपोर्ट और एनकरेजमेंट जो हमें इन बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए जो उनका सेक्रीफाइस है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। प्यारे बच्चों एवं रिस्पेक्टेड एल्डर्स, आई वुड से कि आज हम ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, उसके साथ ये हमारे स्टूडेंट के एक ट्रू सिटीजन, एक आइडियल स्टूडेंट और एक आइडियल सिटीजन होने के लिए सिखाता है। एकेडमिक जर्नी के साथ साथ जो स्कूल की वैल्यूज हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्कूल इज द प्लेस वेयर वी वर्शिप द वैल्यूज। जो स्कूल होता है वो नैतिक मूल्यों का एक मंदिर है, जहां पर हमें सारी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सीखनी होती है और हमें सिखाई जाती है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, कृपया सभी बच्चे भी सुने और सभी अभिभावक भी और जो समस्त यहाँ पर श्रोतागण हैं, कि हमें जो वैल्यूज सिखाई जाती हैं जिसमें कि ऑनेस्टी, पीस, लव, सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड अबव ऑल पेट्रियोटिज्म, जो कि स्कूल में सिखाया जाता है, मैं आह्वान करना चाहूंगा, आई वुड अर्ज ऑल कि उसको अपने जहन में अपनाएं, उसको अपने एसेंस में लाएं। ये जो वैल्यूज हैं, ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ एकेडमिकली ना सीखें, उसे अपने जहन में लाएं। मैं ज्यादा बोर ना करते हुए एक उदाहरण दूंगा कि कहते हैं द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने एक बेसिक वैल्यू बता रहे थे, सदा सच बोलो, सदैव सच बोलो। तो सभी पांडव और कौरव उन 3 शब्दों को आराम से, शांति से सीख गए। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो 7वें दिन तक सदा सच बोलो 3 शब्द नहीं सीख पाए, क्योंकि युधिष्ठिर उस सदा सच बोलो को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते थे, उसे अपने एसेंस में, अपने जहन में उतारना चाहते थे। तो वही कारण है कि युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला। तो इस तरह से मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, जो हम सीखते हैं, उसको पूरा अपने जहन में उतारें। स्कूल इज द बेसिक ऑफ ऑल लाइफ टुवर्ड्स। मेरे जो प्राइमरी स्कूल बीट से जो मैंने अपनी जर्नी सीखी थी, जो मैंने सीखा था, वो मुझे अभी तक मेरे 20 वर्ष के कार्यकाल में जो मैं अपनी फोर्सेस के लिए दे रहा हूं, मुझे वहां पर जो बेसिक वैल्यूज, बेसिक मैंने सीखा है, उसी ने गिरने नहीं दिया और कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने में हेल्प किया। और इसी तरह से जो मैं चाहूंगा, जो स्टाफ, जो स्टूडेंट है, वो भी इस स्कूल की जो बेसिक वैल्यूज है, बेसिक चीजें आपको सिखाई जा रही, उसको अपने जहन में उतारें। जर्नी हमेशा मुश्किल होती है। सक्सेस, आपके गोल्स तभी अचीव होंगे जब एक आप जर्नी के थ्रू जाएंगे, जब आप कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, और जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा होता है। जब आपको अचीवमेंट मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसका एक अलग ही अनुभूति होती है। मैं 2021 में, 2020 में इनफैक्ट एक हमारा माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन था जो लगभग 23,000 फीट का लियो पार्गन, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको सबमिट कर रहा था। तो आखिरी वक्त तक इतनी मुश्किलें थी, हर एक स्टेप चैलेंजिंग था। हमारे कुछ साथी बीमार होकर नीचे उतारना पड़ा, हमें खुद कई तरह की, विद इन 20 डेज आई हैड लॉस्ट 8 kg वेट, बट वो जो पहुंच के वो सक्सेस की अनुभूति थी, वो कुछ ऐसी थी जिसको बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? मुझे पता था चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सक्सेस है उसकी जो फाइनल अनुभूति होती है वो बहुत ही खुशीदायक होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरा मतलब ये कि चैलेंजेस कंटिन्यू रहेंगे, कृपया उन चैलेंजेस को सामना करें और सक्सेस की तरफ जाएं, अपने गोल सेट करें और वहां पर जाएं। क्या नहीं करना है, एक बार फिर से आई वुड अर्ज ऑल दी ऑडियंस, जो छोटे बच्चे हैं वो भी, पेरेंट्स, अभिभावक, स्टाफ, क्या नहीं करना है, बुरी आदतें ना डालें। बुरी आदत आज की डेट में, आज की इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, जिसमें कि कई उदाहरण, मैं कई बातें करना चाहता था और मुझे बहुत ही खुशी है कि अभी फंक्शन के दौरान लगभग हर चीजें बताई गई, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो आज के यूथ को खींच रहा है वो है नशा, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, सोशल मीडिया। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ नेगेटिव्स नाउ। इंफॉर्मेशन बहुत इजी है, पढ़ाई बहुत इजी है, लेकिन नेगेटिव्स इतने ज्यादा हैं
कि उसमें आप जा सकते हैं। मैं बच्चों से, यूथ से ये गुजारिश करूंगा कि वो बुरी आदतों को किसी हालत में ना अपनाएं, उसको नकारें, जिसमें कि नशा, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, सोशल मीडिया और इस तरह से कई है। दूसरा जो आह्वान, जैसा कि अभी आज की परफॉर्मेंस में, वैसे तो सारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सेव अवर ट्रीज, सेव द नेचर, वो परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी जो मुझे लगी। हमें हर हालत में नेचर को दूषित नहीं करना है, क्योंकि नेचर हमारा घर है। अगर किसी भी एक इंच, एनी मैटर, एनी पार्टिकल ऑफ दिस नेचर इज आवर्स, उस पे एक चोट लगना, उसको दूषित करना, वो हम पर है। बहुत ही अच्छा है एक्सपीरियंस मुझे लगभग पूरे इंडिया में रहा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, ले, लद्दाख, हाईएस्ट, लोएस्ट, इंक्लूडिंग द यूएन मिशन। तो मेरा ये मानना है कि डिसिप्लिन को बनाए रखना है, जिसमें दो चीजें अपने बच्चों में, अपने आप में, या हम लोग अवश्य अपनाएं। वो है एक तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। उसके लिए क्या है, आपको एक अच्छा प्रतिदिन का एक रूटीन बनाना होगा। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल का टाइम टेबल हो, कृपया करके अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए अपने दिन भर का टाइम टेबल बनाए, जिसमें कि जो आपका फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, उसके लिए पूरा ध्यान दें। अपनी आदतों को अच्छा बनाएं, जिसमें कि खेलना, कंस्ट्रक्टिव खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, अपने धर्म या उसके प्रति पूजा पाठ कीजिए, नहीं तो मेडिटेशन कीजिए, अपने ईष्ट देव का नाम लीजिए। सुबह उठकर बच्चों को सिखाएं कि उठने पर 5 मिनट और सोने से पहले 5 मिनट अवश्य मेडिटेशन करें, सोचे हमने क्या करने जाना है और हमने पूरा दिन क्या किया, ये पक्का अपनाएं। ये मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, मेरे दिल की भी कुछ बातें थे। मैं खुद बीएससी बीएड किया हूँ और कुछ चीजें, मेरे पास भी एक पैशन था, एक टीचिंग का भी, और मैं टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी रहा हूँ, तो बताना चाहूंगा। दूसरा चीज, नेचर को बचाएं। बहुत ही अच्छी तरह से स्कूल के स्टूडेंट्स ने, सेंट जेवियर फैमिली ने, सेंट जेवियर कैम्ब्रिज फैमिली ने बड़ी अच्छी तरह से बताया गया। नेचर को बचाना है, जिसमें पेड़ पौधे लगाएं, सफाई रखें, जिसकी शुरुआत अपने घर से करें, बच्चे अपने बिस्तर से करें, अपने रूम से करें, अपने आसपास करें, नेचर को गंदा ना होने दें। मैं जैसा बता रहा था, मैं हाईएस्ट पॉइंट पर भी जाकर हमने वहां पर काम किया है। मेरी टीम, जब मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईटीबीपी थी, तो 2020 का लियो पार्गिल एक समिट किया था, उसका मैं खुद लीडर था, तो वहां पर भी जाके हमने नेचर को बचाने का कोशिश किया है। मुझे पता है सब नहीं अपना पाते, लेकिन कुछ अपनाएं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, रिस्पेक्ट वुमेन, जो बच्चों को शुरू से डालें कि जो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन, जैसा कि हम जानते हैं हमारे इतिहास काल से ही लिखा भी गया है, यत्र नारेस्ति पूज्यते रमते तत्र देवता, अर्थात वेयर दी वुमेन्स आर बीइंग वर्शिप्ड देयर गॉड लिव्स। मतलब जहां पर नारी को पूजा जाता है, पूजना मतलब ये नहीं है कि पूजना है, लेकिन हाँ इक्वलिटी लाए, रिस्पेक्ट दी वुमेन्स। और ये चीज अपने शुरू से अपने बच्चों को नर्सरी से ऑनवर्ड ये सिखाएं, और हम आप आसपास भी ये बताएं, क्योंकि नारी का सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है। कुछ पॉइंट्स मैं नोट कर रहा था, हालांकि बहुत सारी चीजें ये बता दी गई थी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड टाइम। टाइम इज एवरीथिंग। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बुरी बात है। टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। स्कूल करिकुलम में भी होता है, उसको उसमें अपने जो बाकी रूटीन है उसमें भी अपनाएं। टेक्नोलॉजी के साथ चलें। आजकल एआई का जमाना आ गया, उसके दुष्परिमाण में ना जाएं, उसके जो अच्छे परिमाण हैं उसके लिए अपने आप को सचेत रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मैं अगेन सबको बताना चाहूंगा, लास्ट एंड फाइनल, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। ये हम बोलते रहते हैं लेकिन अपनाते नहीं है। मैं छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को और यूथ सबको ये बताना चाहूंगा कि हार्ड वर्क का कोई दूसरा जो है उसका रिप्लेसमेंट आया नहीं है। एआई आपको हार्ड वर्क करना नहीं सिखा सकती। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको हार्ड वर्क करना नहीं सिखा सकती। हार्ड वर्क करना ही करना है। योर पेरेंट्स, बच्चों, आपके पेरेंट्स आपको अच्छी बुक्स दे सकते हैं, अच्छा स्कूल दे सकते हैं, अच्छे गैजेट्स दे सकते हैं, अच्छा वातावरण दे सकते हैं,
लेकिन जो हार्ड वर्क है आपके पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे। हार्ड वर्क आपको खुद ही अपने रूटीन में लाना है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू दी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना कोई भी चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं फिर से एक बार अर्ज करूंगा कि हार्ड वर्क को अपनाएं, अपने गोल सेट करें और मेहनत करें। मेहनत करने से 99.999% सफलता मिलेगी। 0.0001% जो है वो लक होता है, लेकिन उसमें भी 0.0001% ही लक होता है। तो कृपा करके मेहनत करें, ये मतलब आग्रह है। अंत में मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव द गोल सक्सेस। ये मेरे आखिरी शब्द थे आज के इस छोटी सी आपके साथ भेंट वार्ता के। एक बार सबको मैं बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें मौका दिया। हम आपके साथ ही अभी जब चेयरमैन साहब बोले थे कि हाँ जितने जो प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो खड़े हो जाएं, मेरा ये मानना है हर कोई सैनिक है, हम सब सैनिक हैं और सभी खड़े हो जाए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरे जस्ट बाद जो आपने अपने जोश को, अपनी डेडिकेशन को ऐसे ही रखना है। जब मैं कुछ शब्द बोलूंगा तो आपने बोलना है हाय सर। क्या बोलना है? क्या बोलना है? सो आई वुड से हाउ द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ओके, जय हिंद, जय भारत।